Hello everyone. Today we will discuss grade 12's topic integrals of some particular functions, and that is your exercise 7.4. So first of all, let's discuss some formulas based on it. First formula is integral dx upon x square minus a square, and this is 1 by 2a log x minus a over x plus a. Actually these two formulas, first and second, both are similar to each other. इनको याद करना it's too much easy. x square minus a square minus x square. So ये दोनों ही formulas log में आते हैं. अगर variable आगे है, constant is on right hand side, x square minus a square, then same term हम यहाँ पे replace करते हैं x minus a. अगर constant आगे है तो हम इस जो फॉर्मूले में साइन है वो चेंज कर देते हैं, a प्लस x आ जाएगा ऊपर ना. सो दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर. इनको सिमिलर फॉर्मूलाज हैं जिनको लर्न करना इजी है. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4th and 5th, दीज टू आर सिमिलर. रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दीज टू आर रिलेटेड टू log of x plus, and write down the situation here, root x square minus a square, and similarly here root x square plus a square. And formula number 3rd and 6th, these are different from these four. X square plus a square, integral dx upon x square plus a square. If this situation is given to you, then apply 1 upon constant, 1 upon a, tan inverse x upon a plus c. And next last is integral dx upon root a square minus x square, that is sin inverse x over a plus constant of integration. So these are the basic formulas जिस पे हमारी एक्सरसाइज बेस है, एंड दैट इज एक्सरसाइज 7.4. सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज formulas. Exercise 7.4, first question is integrate the function. So first function is 3x square upon x raised to power 6 plus 1 d of x. This is the first function, first question. So how to do the integration of this one? हमने ये नहीं कि यही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. अगर आपको पिछली बैक एक्सरसाइजेस में से भी कोई फॉर्मूला को माइंड में आता है, कोई टॉपिक कॉन्टेक्ट में आता है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो आप उसको भी फर्दर यूज़ कर सकते हो. मैं वही रिजल्ट यूज़ करने लगी हूँ. एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते थे, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स स्क्वायर. क्लियर. सो x raised to power 6 इज देयर. क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ? मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ 3x square d of x x cube into square like it. 3 2s are 6, मैंने सेपरेट कर लिया 3 into 2. अब x cube का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x cube is that is 3 times x square, और सेम डेरिवेटिव इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में है, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x क्यूब को. सो पुट x क्यूब इक्वल्स टू t. क्लियर. सो नाउ डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डिफरेंशिएट विद रिगार्ड्स टू x. आपको प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं. अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा कि कैसे इसको करा है हमने, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, आपको वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 3x square d of x, दिस इज dt, इट बिकम्स dt upon this is t, x cube is t square plus 1. Clear. So now match this situation with the formula from these, कि इनमें से किसके साथ ये सिचुएशन मैच हो रही है. वेरिएबल इज देयर, कांस्टेंट इज देयर, और बीच में प्लस है. सो दिस वन, इंटीग्रल dx upon x square plus a square, that is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Clear. So x is there and t is here, constant is 1, so apply the formula 1 upon a is 1, tan inverse x upon a t upon 1 plus c. 1 that is as it is, tan inverse t की जगह हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, that is x cube plus c. So this is the question number first. Please take the screenshot of this question. Next is question number second.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, and given function is integral dx upon root 1 plus 4x square. So this is the second situation. So first of all, taking 4 as a common from root, मैं root में ही पहले common निकाल लेती हूँ. This is okay done. This is 4x square. जब आप 4 बाहर common लोगे, it becomes x square. यहाँ पर 4 कॉमन नहीं है. जब भी हम कोई ऐसी टर्म है जिसमें से हम, जैसे यहाँ पर है 4 नहीं है बट हमने 4 कॉमन लेना है, सो राइट डाउन लाइक इट, डिवाइड कर देते हैं 1/4. आप चाहे बैक पोजीशन में जाके देख लो, 4 और 4 कट के 1 आ जाता है. 4 into x square, दिस इज 4x square. क्लियर. सो रूट 4 जब बाहर आएगा, सो इट बिकम्स 1/2 dx अपॉन रूट 1/4 प्लस x square. This is the situation. 1/4 किसी का स्केयर है, that is 1/2 square. Now match this situation with these formulas. Root is there, denominator में root भी है, constant का स्केयर है, plus x का स्केयर है. So this one situation is, I think this is x square plus a square. So apply this formula. 1/2 log of x plus same situation is here. Now write down log of x plus and write down this term in root as it is. 1/2 whole square plus x square, and c is the constant of integration. Clear? So first of all आपको ये formulas learn करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने देखा हमने 2 questions करे हैं और दोनों में ही हमें formulas की ज़रूरत पड़ती है. So please मैंने तभी साथ में लिखे हुए कि आपको clear हो जाए कि कैसे फॉर्मूला चेक करते हैं, इनमें से कौन सी सिचुएशन हमारे फॉर्मूला के साथ, क्वेश्चन के साथ मैच हो रही है. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रल dx upon root 2 minus x whole square, dx upon रूट 2 minus x whole square plus 1. सो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सेम, अगर आप चाहते हो कि जस्ट x ही बनाना है, x के साथ कोई और टर्म ना हो, तो आप इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हो t के साथ भी. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ. सो इट इज़ 2 minus x whole square. आप इसको 2 minus x लिख लो बिकॉज स्केयर है, चाहे आप इसको x minus 2 whole square लिख लो, बोथ आर सेम थिंग्स. आप एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें कि मैंने इसको चेंज करा तो आपने भी करना है, डजंट मैटर. सो दिस इज इंटीग्रल dx upon root x. दिस इज वेरिएबल स्केयर एंड दिस इज कांस्टेंट. सो मैच द सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में रूट होएगा, वेरिएबल का स्केयर है प्लस कांस्टेंट का स्केयर. So this situation match with this one. Again integral dx upon root भी है, variable का scale भी है, plus is there and constant का scale. So this is the situation. Apply the formula log of x means write down the variable here. Variable is x minus 2 plus and write down whole situation again here. This one x minus 2 whole square plus 1. आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज एज इट इज भी छोड़ सकते हो. क्लियर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रल dx upon root 9 minus 25 x square. आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. मैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ, दैट इज योर चॉइस. क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करोगे, अगर आप नहीं 25 को बाहर निकालना तो दैट्स ओके. आप इसको लिख सकते हो 5x होल स्क्वायर ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर. आप ऐसे भी रिप्लेस करके कर सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रूर कॉमन ले रही हूँ. सो टेकिंग 25 एज अ कॉमन, रूट में ही कॉमन ले रही हूँ फिलहाल. दिस इज 25x स्क्वायर. जब आप 25 बाहर ले रहे हो तो इट बिकम्स x स्क्वायर.
लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 9 इज देयर, 9 से 25 कैसे लिखते हैं कॉमन लेके, सो इट इज 9/25 लाइक इट, क्लियर। जिसमें टर्म है 25 थी यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्टली कॉमन करके वो टर्म एक्स के रहने दिया। यहाँ पे 9 था, 25 कॉमन नहीं था, तो हमें 25 डिवाइड में लिख देते हैं जब आप कॉमन लेते हो। सो दिस इज रूट 25, इट बिकम्स 1/5 एंड इंटीग्रल dx अपॉन, so 9/25 becomes 3/5 whole square minus x square. Again match the situation with these formulas. रूट भी है डिनोमिनेटर में, कांस्टेंट का स्क्वायर है नेगेटिव विद वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट। सो मैच दिस सिचुएशन, रूट किस में है और कांस्टेंट किस में आ गया है। सो दिस इज द सिचुएशन, इंटीग्रल dx अपॉन रूट a square minus x square. So this is sin inverse x upon a. Sin inverse x means you have to write down the variable here upon a. A means constant. 3/5 plus c. So 5 हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. So it is 1/5 sin inverse 5x upon 3 plus c. So this is the question number 4. So take the screenshot of this question. Next is question number 5. Question number 5 is easy one. So write down the function integral dx upon integral 3x dx upon 1 plus 2x raised to power 4. So this is the question number 5. So again situation is there, क्योंकि पावर 4 में हमने कोई ऐसा सच फॉर्मूला नहीं लिखा है जिसमें पावर 4 आ रहा हो आपके पास, ठीक है। सो मैंने पहले ही बोला पावर 4 को हम स्प्लिट करके अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पे बन सकता है। पहले तो मैं इनमें से 2 कॉमन निकाल रही हूँ, फिर 3, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसको। 3 तो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, 2 हम जब कॉमन निकालेंगे, सो ध्यान से देखना, जब आपने 2 कॉमन रखा x4, it becomes x4 and 1 becomes 1/2. Clear? So now next is integral x dx upon x4. x4 को मैं लिख रही हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर, x स्क्वायर का स्क्वायर। बट इस सिचुएशन में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ x की पावर 4 हुई, तो हम क्या करते हैं इस x स्क्वायर को पुट कर लेते हैं t, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, which becomes 2x dx equals to dt. क्लियर? x के साथ 2, x dx के साथ मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है, हम उसको स्प्लिट कर राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स x dx equals to dt upon 2. Write down here dt upon 2. So now change this situation, x dx it becomes dt over 2, dt over 2, ओवर वाला जो 2 है वो मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ इसके साथ, क्लियर। 1/2 एज इट इज एंड x स्क्वायर बिकम्स t, दिस वैल्यू बिकम्स t, बाहर जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। सो दिस इज 3/4 इंटीग्रल dt अपॉन 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 होल स्क्वायर, and this is t square. Now match this situation with these formulas. Constant is there plus variable का square, just root वगैरह इसमें overall root नहीं है कोई भी, so this situation match with formula this one, clear. So this is 1/a tan inverse x upon a, so it is becomes 3/4 1/a, 1 by this value tan inverse x. Tan inverse x means variable over constant, t upon 1/√2 plus c. So it becomes 3√2 upon 4 tan inverse √2 into t plus c. So this is the question number 5. So please take the screenshot of this question. And next is लास्ट में आप t की जगह x के रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम t में नहीं छोड़ते हैं, तो आप डायरेक्टली t की जगह आप x के यहाँ पर भी मेंशन कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो गिवन फंक्शन इज इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन
1 minus x raised to power 6. So this is the question number 6. x square upon x square upon 1 minus raised to power 6. Again same situation is there, x raised to power 6. ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन करा, फर्स्ट पार्ट तो था हमारा ये. सो इसमें हमने क्या करा था कि x6 को हम स्प्लिट कर लेते हैं. इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर. एक्स क्यूब ही अंदर क्यों लिखा है, क्यों लिखा है एक्स क्यूब? एक तो स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे बाहर चाहिए, स्क्वायर चाहिए इस फॉर्मूला में, तो ताकि मैं इनमें से कोई अप्लाई कर सकूँ फॉर्मूला. सेकेंडली न्यूमिनेटर में वैल्यू है एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है? एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आता है, क्योंकि जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं दैट इज 3x स्क्वायर. तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मैं उसके साथ रिलेट करके देख रही हूँ. सो पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी. अगेन डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो दिस इज एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3. सो दिस वैल्यू बिकम्स डी टी अपॉन 3. 3 को मैं एज इट इज रख रही हूँ, ठीक है. सो इट इज बिकम्स 1 माइनस टी स्क्वायर. क्लियर? सो 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स ऑलवेज 1. 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1. कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर. कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, दिस सिचुएशन कांस्टेंट इज देयर, a इज 1 एंड x की जगह पे हमारे पास t है. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो दिस इज 1/3. 1/2a, a मीन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज 1 log ऑफ a प्लस x. कांस्टेंट प्लस वेरिएबल 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c. क्लियर? सो 3 2 are 6, 6 1 are again 6 is here. log ऑफ t की जगह हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज x क्यूब. 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब plus c. So this is the question number 6. So take the screenshot of this question. And next is question number 7. Question number 7. Given function is integral x minus 1 upon root x square minus 1 d of x. Integral x minus 1 upon root x square minus 1. अब तक जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सब में हमने पढ़ा कि एक ही टर्म होती थी न्यूमिनेटर में, सिंगल टर्म होती थी हमारे पास न्यूमिनेटर में, और हम सेम डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का ऊपर बना देते थे. ठीक है. सो इस सिचुएशन में हम लोगों को स्प्लिट करना पड़ेगा, बिकॉज इन न्यूमिनेटर वी हैव 2 वैल्यूज, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है. पहले तो मैं अलग कर लेती हूँ दोनों को. x dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. आपको सिचुएशन याद आ जाएगी जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में करी है. सो सेकेंड इज द डायरेक्टली फॉर्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला, रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. बट फर्स्ट सिचुएशन में आपने नोटिस करा डेरिवेटिव ऑफ दिस सिचुएशन, जब हम डेरिवेटिव करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हम करते हैं दैट इज 2x होना चाहिए. मेरे पास यहाँ पे x है, ये 2 नहीं है. सो मैं अपने आप एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. साथ में मैं सिचुएशन को एज इट इज लिख रही हूँ. आपको याद आ जाएगा ये कौन सा फॉर्मूला है. रूट, इसकी वैल्यू है रूट, पावर है रूट, मीन्स 1/2. जब हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स माइनस 1/2. फिलहाल मैं सेकेंड टर्म को भी एज इट इज रख रही हूँ ताकि हम डायरेक्टली, ये फॉर्मूला आपके पास सिचुएशन है, आप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइजेस में. अगर कोई टर्म है पावर में है, उसका डेरिवेटिव साथ में पढ़ा तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है. हम पावर में 1 प्लस कर देते हैं, इसकी पावर में आप 1 प्लस करोगे. सो माइनस 1/2 में 1 प्लस करा, दैट इज 1/2. 1/2 इज हियर. क्लियर? सो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस सेम. इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x plus root x square minus a square. Log of x plus root, same situation, write down here, x square minus 1 plus c. 2 and 2 cancel, so it becomes root x square minus 1, and this is log x plus root x square minus 1 plus c. So this is the question number 7. Please take the screenshot.
So next is question number 8. Question number 8 is similarly to the question number 6 as well as question number 1st. So question number 8, do yourself. If you have any doubt, आप comment box में comment करके लिख सकते हो. Next is question number 9. Question number 9 is related to the trigonometric function. Question number 9 is related to trigonometric function. So that is integral secant square x d of x upon root tan square x plus 4. So I think this is easy one. क्यों इजी है वो मैं आपको बताती हूँ. लास्ट एक्सरसाइज को अगर आप रिकॉल करोगे तो अगर हम tan का डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ tan इज secant square x, न्यूमरेटर में है आपके पास. अगर मैं tan को रिप्लेस करूँगी t, tan को पुट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव secant square आपके पास न्यूमरेटर में है, तो हम tan को रिप्लेस कर सकते हैं t. पुट tan x इक्वल्स टू t. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इज secant square x, राइट डाउन dx हियर and dt. So ये तो इजी हो जाएगा. This whole term becomes dt and this is tan को हमने t पुट करा है, square is there, so it becomes t square plus 4. plus 4 को मैं साथ में लिख रही हूँ 2 square. Clear? So this situation match with this one. Again log formula is there. Root integral dx upon root x square plus a square. It is log of x plus same situation right over here. So apply formula log of, write down the variable is t plus same situation is here t square plus 2 square. So again replace the value of t here and value of t is tan x. So write down here tan x plus root t square. T square means tan square x plus 2 square is 4 plus c. So this is the question number 9. So please take the screenshot of this question. Next is question number 10. Next is question number 10. Question number 9 तक जो है, question number 9 तक all are easy questions. क्यों easy थे? क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ये situations बनी आती थी. जस्ट आप एक बार रिप्लेस कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज आपको डायरेक्टली ये टर्म मिल जाती थी, सेम सिचुएशंस मिल रही थी. बट आफ्टर 9th आपको ये सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेंगी टर्म्स को. ऐसी सिचुएशंस बनानी है, ऐसे फॉर्मूलाज बनानी है, देखना है कौन सा फॉर्मूला फिर उसके बाद अप्लाई कर सके. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रल dx upon root x square plus 2x plus 2. So this is the question number 10. 2x plus 2. So इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है बेसिक जो है फॉर्मूला मैं वो अप्लाई करने लगी हूँ. क्लियर? कैसे करते हैं आपको याद होएगा, आपने ग्रेड 10th में भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करा है. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर माइंड में नहीं है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसका फिर आपको लिंक सेंड कर सकती हूँ. दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. फिर भी एक बार बात कर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. एक्स स्क्वायर और 2x हम एज इट इज रख रहे हैं. मैं ये कांस्टेंट 2 बाहर रख रही हूँ साइड में. क्यों रख रही हूँ वो भी बताऊँगी बाद में. कांस्टेंट को मैंने अलग से रख लिया. ग्रेड 10th में हमने पढ़ा है एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, एक्स के साथ नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको अलग से रख लो. जो भी कोफिशिएंट आपने यहाँ लिखा उसको नहीं देखना आपने, जस्ट आपने नीचे एक वैल्यू 2 लगानी है. ऑलवेज 2 इज देयर, हमेशा 2 लगाओगे आप. कट करो इसको, दैट इज 1. ये टर्म आ गई है. आपने जो टर्म आपके पास आई है उसका एक स्क्वायर प्लस कर दो, एक स्क्वायर माइनस कर दो. क्लियर? अगेन एक्स के साथ आपके पास जो भी वैल्यू है वो साइड में लिख लो और ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है. चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे इट्स 3, 4, 5 कुछ भी, आपने नीचे 2 से डिवाइड कर देना. अगर कैंसिलेशन हो रही है तो जो भी टर्म बच रही है आपके पास उसका एक स्क्वायर आप प्लस करोगे, एक माइनस करोगे. सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab.
it becomes a plus b whole square. आपको याद हो तो a plus b whole square, x plus 1 whole square. 2 minus 1 is there, तो मैं 2 minus 1 होता है, ठीक है. तो मैं 1 को भी स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी सिचुएशन इससे मैच करनी है. एंड दिस वन मैच विद this formula, integral dx upon x square plus a square, and formula is 1 by a tan inverse x over a. So same situation is the 1 by a means constant, this is variable and this is constant. Tan inverse x upon a, variable over constant, x plus 1 over 1, and this is a constant of integration. Tan inverse x plus 1 plus c. So this is the question number 10. So please take the screenshot of this question. Wait, listen. I think root is there. Sorry, it's root is there. हमने root miss कर दिया. Root is there. So don't apply tan inverse. So this is root x square plus a square log of x plus, same situation is there, x plus 1 plus, write down same situation here, x plus 1 whole square plus 1, and constant is here, constant plus c, constant of integration. So it is x square plus 2x plus 2. So this is the exact question, question number 10. So let's discuss the question number 11. Question number 11th is, given function is integral dx upon 9x square plus 6x plus 5. 9x square plus 6x plus 5. This is question number 11. dx upon 9x square plus 6x plus 5. So first of all हम लोग क्या देखते हैं, constant x square के साथ जो भी constant आ रहा है means 9 is there, तो मैं उसको आगे common निकाल रही हूँ. So taking this one as a common term, so this is 9, जब आपने common निकाला it becomes x square, and this value becomes 6 by 9 of x plus 5 upon 9. So again apply the formula अप्लाई करने से पहले जो अपने मेथड ऑफ स्क्वायर हमने रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से. मैंने ऑलरेडी बता के हटी हूँ, x के साथ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो भी है उसको आप अलग से लिख लो. डन. x के साथ वैल्यू है 6 by 9 और जो भी वैल्यू है उसके नीचे डिवाइड में 2 लगा देते हैं. क्लियर. 2 इज देयर. अब कटिंग वगैरह कुछ हो रहा है तो कर लो. 3 2 ज़ा 6, 3 को कट करा 1 by 3. सो आंसर इज 1 by 3. मैंने बताया था जो भी वैल्यू आएगी आपने उसका एक स्क्वायर प्लस, उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस. सो दिस इज 1 by 3 होल स्क्वायर एंड राइट डाउन 1 by 3 होल स्क्वायर हियर. क्लियर. सो इट बिकम्स 1 by 9 एंड दिस इज अगेन फॉर्मूला x square plus 1 by 3 whole square plus 2 times these two values. So this is a plus b whole square or x plus 1 by 3 whole square. Clear. राइट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं. 5 by 9 minus 1 by 3. आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो. दिस इज 1 by 3 सो इट बिकम्स 1 by 9. रफ में सॉल्व कर लेते हैं इसको. 1 by 9 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इट बिकम्स 4 by 9. 4 by 9 किसका स्क्वायर है? 2 by 3 होल स्क्वायर. Clear. So it is 2 by 3 whole square. So this situation is related to the formula integral dx upon x square plus a square. So that is 1 by a, this value tan inverse x upon a. So this value 1 by x plus 1 by 3 over 2 by 3 plus c. So आप cancel कर लो इसको. 3 को 3 से कट करा it becomes 1 by 6. So tan inverse after taking LCM, जब आप इसका LCM लोगे वो LCM वाला 3 और this 3 both are cancelled. 3x plus 1 over 2 plus c. So this is the question number 11. Please take the screenshot of 11th question. So next is question number 12. Question number 12. So these are similar questions. बस 2
3 स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं एक पार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रल dx upon root 7 minus 6x minus x square। एक तो ये आपने माइंड में रखना है कि x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। सेकेंडली x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर वगैरह ना हो, हम उसको कॉमन रख कर लेते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है, इससे सॉल्व उससे भी हो जाएगा, बट ये इस सिचुएशन इजी हो जाती है इसको हैंडल करना, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब x स्क्वायर इज नेगेटिव, क्योंकि मुझे तो कांस्टेंट अलग से रखना है, वो मैंने शिफ्ट कर दिया। x स्क्वायर इज नेगेटिव, मैं नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ, x स्क्वायर प्लस 6x, क्लियर। अब मेथड तो वही रहेगा, x के साथ कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज दैट इज 6 कोफिशिएंट है, तो इसके नीचे 2 लगा लेते हैं, इट बिकम्स 3। आंसर इज 3। सो मुझे 3 का स्क्वायर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सो मैं इसी सिचुएशन में एक 3 स्क्वायर प्लस कर रही हूँ, एक 3 स्क्वायर माइनस कर रही हूँ, बट लिसन क्वाइटली, एक 3 स्क्वायर माइनस कर दिया, एक 3 स्क्वायर बाद में प्लस कर दिया, मैंने नेगेटिव। अब मैं इसके साथ ब्रैकेट के साथ कौन सा अटैच करूँगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन कॉमन चाहिए, सो टेक दिस वन, क्लियर। क्योंकि दोनों में से नेगेटिव आप कॉमन लोगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा वो मैं भी बताती हूँ। टेकिंग नेगेटिव एज अ कॉमन, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x। जब आप नेगेटिव कॉमन लोगे सो इट बिकम्स 3 स्क्वायर, क्लियर। सो 7 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, क्लियर। सो इट बिकम्स इंटीग्रल dx अपॉन 16 इज दियर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, सो हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, एंड दिस इज बिकम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर। सो नाउ रूट इज देयर, ये रूट मिस हो जाता है, रूट इज देयर, सो दिस इज रूट a